Okay, beta. Let's discuss area of a segment, right? तो फर्स्ट थिंग बेटा, व्हाट इज अ सेगमेंट? ठीक है, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं. लेट्स से दिस इज अ सर्कल, राइट बेटा, एंड आई ड्रॉ अ लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट बेटा. ठीक है, लेट्स से दिस इज द सेंटर, हम इसको सेंटर मार्क कर देते हैं. एंड आई ड्रॉ अ लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक हो गया, ये हम सेंटर ओ मार्क कर देते हैं, राइट. तो बेटा वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट अ लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बेटा दिस इज कॉल्ड द डायमीटर. ठीक. Any other line which touches both ends of the circumference, right, and it does not pass through the center of the circle, beta such a line is called a chord. ठीक हो गया, such a line is called a chord. It's chord of a circle, right. You can draw any other line. Let's say we draw a line here, we draw a straight line here, right. We can see this is not passing through the center of the circle. Just a second. We draw a line here. So beta, this is not passing through the center of the circle. So yes, this is also a chord, right? We can beta draw a line. Let's say we can draw a line here, right? Again, it is touching both ends of the circle. It's not passing through the center of the circle. So it is a chord, right beta? So it's very important to understand the difference between a diameter and a chord, right? If a line passes through the center of the circle, it's a diameter. Simple as that, right? We have already discussed a lot about diameter. ठीक है बेटा, चलो. Chord, clarity. A line that does not pass through the center of the circle and touches both ends of the circumference, that straight line is called a chord. ठीक हो गया बेटा. अच्छा, ये तो हो गया chord की discussion, right? So, okay, let me make another circle. ठीक, let's make another circle, right beta. Okay, and let me make a straight line, a chord. Okay, ये बेटा this is a chord, right. हम center mark कर देते. Let's say this is the center of the circle. ठीक, this is a chord. और ये बेटा हम area shade कर देते. Let's say we shade this area. ठीक, apart this area is obviously a portion of area of a circle, right? ठीक. So beta, please remember that the area of a circle cut off by a chord. चलो मैं इसको let me write this so that आपको बेटा ये area of a segment का concept बेटा clear हो जाए, right? Area of a segment का बेटा concept बड़ा clear होना चाहिए. So what is area of a segment? ठीक है, इसको जरा define कर लेते हैं. Right? What is area of a segment, beta? Area of a circle. Area of a circle. Beta, cut off by a chord. ठीक? Area of a circle. Cut off by a chord. Right, beta? So this area, ये जो मैंने white में shade किया है, beta, this is a segment. This is area of a segment, right? So ये बेटा आपके पास क्या है? This is the minor segment. ये हम मार्क कर देते हैं. This is the minor segment. और ये जो बेटा unshaded है, this is the major segment, right? ये भी chord ने बेटा area इसको divide किया हुआ है, cut off किया हुआ है from the circle. So ये जो shaded है white वाला बेटा, दिस इज द माइनर सेगमेंट, और जो अनशेडेड है ऊपर वाला, दिस इज द मेजर सेगमेंट, राइट बेटा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो बेटा, एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, CIRCLE, एरिया ऑफ अ सर्कल कट ऑफ बाय अ कॉर्ड, राइट. क्लैरिटी, नॉट बाय अ डायमीटर. अगर बेटा एरिया कट ऑफ बाय अ डायमीटर होगा, सो वो सेमी सर्कल बनते हैं. ठीक. सो बाय अ कॉर्ड अगर एरिया कट ऑफ होगा, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट. ठीक. सो माइनर सेगमेंट हो या मेजर सेगमेंट हो, आई होप ये दो कॉन्सेप्ट्स अब बड़े क्लियर हो जाने चाहिए. वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉर्ड, व्हाट इज अ कॉर्ड, एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज बेटा के व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट, व्हाट इज अ सेगमेंट, राइट. ठीक हो गया. अच्छा, अब बेटा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस
कैन कम इन एग्जाम्स, ठीक, ओके। सो ये बेटा कॉन्सेप्ट मिक्स होता है विद द सेक्टर, राइट। लेट्स मेक अनदर सर्कल, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं बेटा। लेट्स मेक अ सर्कल नाउ। अब आपने बड़ा अंडरस्टैंड करना है इस चीज को, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक। लेट्स ड्रॉ अ लाइन, अ कॉर्ड, ठीक होगा बेटा, दिस इज अ कॉर्ड, राइट, और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। यहां से आई ड्रॉ अ रेडियस, ये भी रेडियस, और सेंटर ऑफ द सर्कल से आई ड्रॉ अनदर रेडियस एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, द अदर एंड ऑफ द कॉर्ड, राइट। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज अ रेडियस, ठीक। हमने कॉर्ड के दोनों एंड्स सेंटर से ज्वाइन कर दिए। सो बेटा ये भी रेडियस, दिस इज वन रेडियस, राइट, एंड दिस इज द अदर रेडियस। इसमें कोई डाउट किसी को, राइट। सो दिस मेक्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा। हमने ऑलरेडी ट्राइंगल्स के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बड़ी डिस्कशन की हुई है, तो ब्रीफली बेटा यहां जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, प्लीज रिमेंबर दैट एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज वन जिसमें दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है, राइट। सो वो जो इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, रिमेंबर दैट इक्वल लेंथ्स का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, लेट्स से दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज ए, तो बेटा इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स हम ओ लेबल कर देते हैं, राइट। ये इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, राइट। तो बेटा ये जो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है, इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द अदर साइड, राइट, अगर आप 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इट डिवाइड्स द अदर साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इट डिवाइड्स द अदर साइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट, ठीक हो गया। एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये एंगल को बेटा टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। लेट्स से अगर टोटल एंगल 40 डिग्रीज है तो 20-20 हो जाएगा, राइट, ठीक हो गया। एंड इट डिवाइड्स द बेस कह लो या अदर साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, क्लैरिटी। तो बेटा दैट मेक्स टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, और हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और जो भी आपको एरिया रिक्वायर्ड है। नॉर्मली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें रिक्वायर्ड होता है, क्लैरिटी बेटा, ठीक हो गया। सो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है। एंड रिमेंबर दैट बेटा एग्जामिनर आपको रेडियस मार्क करके नहीं देगा, ही वोंट मार्क रेडियस फॉर यू। ये अंडरस्टूड बात है बेटा कि इफ इट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और यहां बेटा कॉर्ड एग्जामिनर ने ड्रॉ की हुई है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये दोनों लाइंस दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल बिकॉज सेंटर से मार्क हुई हुई है, ठीक। सो अगर आप कॉमन बेटा उसका जो पॉइंट है वहां से अगर आप बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन द अदर साइड, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल, सो बेटा ये जो कॉमन वर्टेक्स है उसकी जो इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स द वर्टिकल एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। इफ दिस एंगल इज एक्स, ये एंगल भी एक्स होगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा, ठीक है। सो वी कैन फाइंड, अब नॉर्मली होता है कि बेटा हमें एग्जामिनर कह देता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक। ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपने फाइंड करना होता है, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, लेट्स शेड दिस। सो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आपने फाइंड करना होता है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है, राइट, ठीक हो गया, क्लैरिटी बेटा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे जरा मुझे बताओ। एरिया ऑफ सेगमेंट सब कुछ बेटा आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट अ बिट ऑफ आईक्यू एंड अ कॉमन सेंस बेटा। एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, ये मैं इसको ए और बी अगर लेबल कर दूं तो एरिया ऑफ द सेक्टर बेटा ओ ए बी, राइट। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। सो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दे देंगे तो बेटा द रिमेनिंग एरिया विल बी एरिया ऑफ सेगमेंट। सिंपल वन लाइन आंसर, लेकिन उसके लिए बेटा ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट ये आपके माइंड में होना चाहिए, राइट बेटा। ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन, राइट बेटा। वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ कॉर्ड एक्स वाई, और बेटा वहां से रेडियस आपका सेंटर से सबटेंड हो रहा है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, एक्स वाई पर। दैट मेक्स अ ट्राइंगल, और ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है ओ एक्स वाई।
So beta, you have to find the angle XOY, right? You have to find the angle XOY. ये आपको complete angle चाहिए, right? You have to find the complete angle. और second, you have to find the area of the minor segment, right? चलो. So beta, we know the fact कि अगर we know beta this is the radius and this is the radius, ठीक? OX भी radius है, OY भी radius है. We know that, ठीक? एग्जामिनर ने बेटा हमें ये फिगर दी हुई है, सो वी शुड नो कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? ओके बेटा, कॉमन जो उसका वर्टेक्स है दोनों इक्वल साइड्स का, वहां से परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ ऑन द अदर साइड. सो वी नो कि ये परपेंडिकुलर दैट डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल हाफ्स. सो इफ दिस इज 6 तो दूसरी साइड भी 6 होगी, राइट? सो कंप्लीट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 12 सेंटीमीटर्स. इसमें कोई डाउट किसी को, राइट? ओके, सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगल एक्स वाई. कंप्लीट एंगल चाहिए तो हम बेटा हाफ एंगल फाइंड कर लेते हैं. बेसिकली हम कह देते हैं एम ओ वाई, राइट? हम एंगल फाइंड कर लेते हैं. लेट्स मेक द ट्राइंगल. हम बेटा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हाफ ट्राइंगल, राइट? सो ये O, ये M 90 डिग्रीज और ये बेटा Y, राइट? दिस इज 6. ओके बेटा, तो व्हाट इज OY? बेटा वी नो दैट OY इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर्स मार्क की हुई है, सो हम लिख भी लेते हैं OY इज 10 सेंटीमीटर्स, राइट बेटा? सो OY इज 10, राइट बेटा? वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. हमने बिकॉज वर्टिकल एंगल फाइंड करना है, वी नो दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एंगल, राइट? हम ये फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेटा वी हैव ऑलरेडी डन थॉरो डिस्कशंस. जरा मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा हमने जो डिस्कशंस किए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग बेटा? लेबल द साइड्स, ठीक? एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? दैट इज ऑपोजिट. पेंसिल से लिखो. 90 डिग्रीज के ऑपोजिट साइड क्या होती है? दैट इज द हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड इज द बेस. बेटा वी डोंट नीड टू मेंशन दैट बिकॉज वो हमें गिवन नहीं है, ठीक? चलो, सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो लग रहा है? साइन, राइट बेटा? साइन थीटा क्या होता है? That is opposite over hypotenuse. What is cos theta? That is base over hypotenuse. What is tan theta? Opposite over base. Right बेटा? So ये आपकी फिंगर टिप्स पे बेटा चीजें होनी चाहिए. So one line answer. चलो just plug in the values. तो बेटा sin theta आपके पास क्या आ गया? Opposite is what? ये हमने मार्क किया हुआ है 6. And what is hypotenuse? That is 10. 6 over 10. तो बेटा थीटा क्या आ गया? दिस इज साइन इनवर्स 6 over 10, राइट बेटा? एंड विच इज, जरा मुझे वैल्यू बताओ, व्हाट इज साइन इनवर्स 6 over 10? ये बेटा आ गया 36.87 डिग्रीज, राइट? सो ये दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एंगल. जो हमें टोटल एंगल बेटा चाहिए दैट इज XOY. XOY वी नीड द टोटल एंगल. सो हमने हाफ एंगल फाइंड किया है. सो बेटा टोटल एंगल जस्ट राइट angle XOY is 2 times theta, right? इसका डबल होगा. So basically 2 times 36.87, ठीक? और बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया? बेटा दिस इज 73.74, right? So बेटा we know that angles के आंसर, डिग्रीज के आंसर we give it to 1 decimal place. Standard instructions, right? So we just need to look at the 4th digit. If it's second decimal place, ठीक है बेटा? Second decimal place, if it is 5 या more than 5 तो previous में एक add हो जाएगा, ठीक? So it's less than 5 तो ये बेटा 73.7 डिग्रीज. ये आपके पास टोटल एंगल आ गया बेटा, एंगल XOY. इसमें कोई डाउट किसी को, राइट? सो बेसिकली बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है. आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा प्लीज रिमेंबर दैट बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, कि जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें. इट डिवाइड्स द बेस इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स द एंगल, जो वर्टिकल एंगल है जहां से जिस वर्टेक्स से आपने बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इट डिवाइड्स दैट एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स. ठीक, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के वी फाइंड दैट हाफ एंगल और उसको हम डबल कर लेते हैं फॉर द कंप्लीट एंगल. यहां तक किसी को डाउट बेटा? क्लैरिटी? ओके. नाउ हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये मुझे बताओ. ऊपर भी हमने डिस्कस किया, राइट? एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट जो हमने शेड किया पिंक से. इट्स वेरी सिंपल बेटा. एरिया ऑफ द कंप्लीट सेक्टर हमने बेटा लास्ट वीडियो में
एरिया ऑफ सेक्टर को डिस्कस किया है। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का? वन लाइन आंसर, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस रेडियस की वैल्यू प्लग इन करनी है बेटा, पाई की वैल्यू प्लग इन करनी है, यू विल गेट द आंसर्स। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये जो अनशेडेड है, एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट जो शेडेड है, राइट। सेक्टर बेटा क्या होगा? ओ एक्स वाई, कंप्लीट एरिया विच इज बाउंडेड बाय द रेडियस एंड द आर्क ऑफ द सेक्टर। ठीक, ये जो सर्कमफ्रेंस है, कंप्लीट एरिया इज एरिया ऑफ सेक्टर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब इसको जरा जल्दी से लिख लेते बेटा। सो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सो ओके बेटा, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या बेटा? थीटा ओवर 360, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इनटू पाई आर स्क्वायर, राइट, माइनस व्हाट इज बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? दैट इज हाफ ए बी साइन सी, राइट, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, हाफ ए बी साइन सी, राइट बेटा, सिंपल इज दैट। चलो वैल्यूज प्लग इन कर दो। थीटा क्या है बेटा? अभी हमने फाइंड आउट किया है 73, हमने अब एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं लेनी। तो 73.74 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू बेटा 3.142, रेडियस ऑलरेडी हमने देखा है दैट इज 10 स्क्वायर, राइट। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? दैट इज 10, राइट, ठीक हो गया, दैट इज 10 स्क्वायर। और माइनस चलो हाफ ए बी, अगेन ट्राइंगल की बेटा अब एरिया की बात हो रही है, दो कंसेक्टिव साइड्स कौन कौन सी? 10 एंड 10, राइट। सो हाफ 10 into 10 into sine of the included angle, once again 73.74, right बेटा। चलो ये जरा मुझे इसकी वैल्यूज बता दो दोनों ब्रैकेट्स की। अब कैलकुलेशंस बेटा ध्यान से करनी है। तो ये बेटा वैल्यू आ गई 64.358। लेट्स टेक इट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ताकि जरा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। और बेटा सेकंड आंसर आ गया, ये बेटा आ गया 48.000, राइट, अगेन 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लैरिटी बेटा। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, जरा मुझे आंसर बताओ। तो ये बेटा आ गया फाइनल आंसर 16.358, राइट। सो वी नीड टू गिव आवर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वील जस्ट हैव अ लुक एट द फोर्थ वन। 5 या 5 से ग्रेटर है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा प्रीवियस वन में। तो ये बेटा आ गया 16.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आ गया एरिया ऑफ द सेगमेंट, राइट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। आई होप बेटा दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। सो बेटा एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। कोई एम्बिग्विटी हो बेटा टेल मी।